Is my screen visible to all, everybody? Yes, sir. Yes. Okay. Just let's start the class. So I've asked you to revise the basically pair of linear equations in two variables. Have you done that? Everybody? I was absent. Okay. What about Samina, Karishma? Yes, I did, but then I didn't revise the elimination and substitution. Okay, okay, dear. Let's see who has joined. Samina, Karishma. Okay, so okay, let me give you the basic insight of this chapter. So first of all, what is basically linear equation? Can anybody tell me? Quadratic equation किया था हमने last class में. What is linear equation? Does anybody have any idea? Like two variables. No. So basically linear equation क्या होती है बच्चों? देखो, linear equation is basically in which the power is 1. The power of the variable is 1. ठीक है? So, Yes, and sir. two variables means both the variables that are present in this equations, present in the equation has the degree 1. So the standard form is basically, so we are talking the pair of linear equation. The standard form is a1x plus b1 y plus c1 is equals to 0. ठीक है? And a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. So this is the standard equation. Clear है? Yes, sir. ठीक है? So standard equation is this, and the basically अब हमारे इसमें क्या होता है, दो टाइप के मेथड्स होते हैं. फर्स्ट इज एलिमिनेट बेसिकली, जस्ट अ सेकंड. आदिल, बच्चे आपकी क्लास जो है नेक्स्ट क्लासेस के जो क्लास नेक्स्ट होगी ना, वो अभी इस टाइम पे आपकी केमिस्ट्री क्लास है डियर. ठीक है? सो आफ्टर द केमिस्ट्री यू आर गोइंग टू हैव योर मैथ्स क्लास. ओके, सेम टॉपिक विल बी रिवाइज्ड, डोंट वरी अबाउट दिस. ठीक है? Sir, so now I have to join chemistry. हाँ, यू हैव टू ज्वाइन केमिस्ट्री डियर. Okay, sir. Yeah. Okay, that's great. So okay, Karishma, are you there? Yes, sir. Okay, okay. ठीक है, ठीक है. So this is the standard equation of the linear equation. ठीक है? So आपके दो मेथड होते हैं, दो नहीं तीन होते हैं बेसिकली. फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड. सो ग्राफिकल मीन्स आप ग्राफ वगैरह के थ्रू इसकी बेसिकली फाइंड आउट करते हैं. एंड द सेकेंड इज अल्जेब्राइक मेथड. अल्जेब्राइक मेथड में आपके दो मेथड्स आते हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन. एक था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो डिलीट हो चुका है सीबीएसई एनसीईआरटी से, सीबीएसई सिलेबस से. सो फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन. बी पार्ट इज एलिमिनेशन. ठीक है? और आपके यहाँ एक होती है जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस.
ठीक है। सो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस में क्या होता है, देखो, इफ योर a1 by a2 is not equals to b1 by b2, it means that आपकी ये जो चीज है, आपकी ratios, if not they are not equal, it means that the solution lines are intersecting, यानी कि वो intersect करेंगे at a point, and they have unique solution, only one solution is present, ठीक है, unique, clear है, Yes, sir. बोलो, ठीक है। नेक्स्ट इज आप किसकी सेकंड पार्ट किसको याद है केस, करिश्मा आपको याद है Sir, क्या? A1, so should I say? हाँ, सो यस यस श्योर, a1 by By a2, A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. Sir, c1 I by think it's c2, coincident lines. c1 by c2, yes, these are coincident line. So इसके number of solutions, how many number of solutions are there? Infinitely. So infinite, very good, infinite solutions, ठीक है। थर्ड केस किसको याद है, a1 by A1 by A2 a1 by equals to a2 B1 by B2 a2, not equals to C1 by C2. very good, a1 by 2 equals to c1 by c2, ये आपके आ गया पैरेलल। ये बताओ इसका क्या होता है सॉल्यूशंस, No solution. नो सॉल्यूशंस, वेरी गुड, जस्ट okay, so is this clear to all? Yes, sir. Try this one and let me know the answer.
Sir, it's parallel lines. Okay, so let's find out. Okay, let's find it out. So solution says that देखो आपको A1 is what 3/2, B1 is what 5/3 and C1 is equals to -7 क्योंकि हम उसको उधर साइड लेके आ जाते हैं ना, ठीक है। एंड A2 3/2, B2 is 2/3, C2 is -6, ठीक है। So let's find it out. So A1 by A2 फाइंड करते हैं पहले तो। A1 by A2 और बेसिकली B1 by B2 को हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ये वाला केस हमारा इक्वल ये वाला केस सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। A1 by A2 is 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है। इज नॉट इक्वल्स टू और नॉट हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे 5/3 एंड 2/3, ठीक है। सो ये तो कैंसिल हो गया, बट ये 1 आ रहा है यहाँ पर। नो, इट्स नॉट कमिंग 1, इट्स 5/2। यस और नो? सो ये आपकी लाइंस क्या है? पैरेलल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, से इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्लियर है? Yes, sir. Yes. ठीक है। सो आई थिंक आपने थोड़ा सा जल्दी, Sir, actually, I हाँ, solved everything in there and I got 0, sir. So that's why I didn't cancel it. ओके ओके, नो वरीज। लेट मी गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, सो जस्ट अ सेकेंड। Let's do some question based on the basically exemplar से क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। क्या बात, आज बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया? 2 लोगों ने ज्वाइन किया बस। ये देखो, ये क्वेश्चन करो आप लोग एंड लेट मी नो द आंसर। So Yes, Karishma. is the answer 36? Okay, let's find out. I don't know the answer. Samina, what's your answer? One minute, sir.
Yes, sir, I'm getting 36. Okay, let's find it out. So basically it is written that, so sum of a 2-digit number is 9. If 27 is added to it, the digit of the number gets reversed. So basically the sum of of the digits of a 2-digit. So let x and y be tens and ones place. ठीक है? ठीक है? So x plus y तो आपका आ गया 9. So second equation is that if 27 is added to it, the digit of the number get reversed. तो यहाँ पे आपकी equation बन जाएगी. Just a second, actually my screen got freezed. Allow me a moment. Is my pen? Yes, now pen is working. So next equation है, अगर आप number में 27 add कर देते हो तो number get reversed. So basically 10x plus y plus 27 is equals to 10y plus of x. So I'll take all the variables on one hand. So 10x minus x plus y minus 10y is equals to minus 27. So it is 9x minus 9y is equals to minus, oh sorry, not 2y, 27. So x minus y is coming out to be minus of 3. ठीक है? So add them because यहाँ पे आपकी negative y है and positive y, so it will get eliminated using elimination method. Yes or no? कोई से भी Yes, मेथड sir. से आप सॉल्व कर सकते हो. नथिंग इज मेंशनड हियर. सो दिस विल गेट बेसिकली यहाँ पे ऐड कर देंगे 2x इज इक्वल्स टू 6. सो x इज इक्वल्स टू 3. सो x3 आ गया. पुट दिस इन हियर. सो take this here. So it is 3 minus y is equals to minus 3. मैं like properly solve इसलिए नहीं कर रहा हूँ step by step क्योंकि ये आपको पता है कि this is a revision class. So as you know the method already, I've done this thing in the classes as well. ठीक है? सो y को इधर शिफ्ट कर देते हैं और 3 इधर आ जाएगा. 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6. सो आपका जो ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस y था. सो इट इज 36. ठीक है? सो दिस द 36. वेरी गुड. आंसर इज करेक्ट. क्लियर? एवरीबडी गॉट इट? Yes, sir. ओके, लेट्स डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एमसीक्यूज कर लेते हैं क्योंकि एमसीक्यूज आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ठीक है? सो हम लोग एग्जाम्पलर्स के एमसीक्यूज करते हैं तो दैट वुड बी मच एफिशिएंट फॉर यू. Solve this and let me know the answer जल्दी जल्दी से.
Done, sir. Okay, that's great. Yes, sir. Done. Okay, tell me the first answer. Sir, So, D. first is D. First is D. ओके वेरी गुड, क्योंकि आपके A1 और A2 तो मैच, A1 बाय B1 और B1 बाय B2 तो मैच कर रहे हैं, बट C1 और C2 मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दे आर नॉट इक्वल इन रेशियोज. नेक्स्ट वन, Sir, D, no solution. D. नो सॉल्यूशन. सो आपके -1/3 -1/3 एंड नो सॉल्यूशन. इट इज ऑल्सो पैरेलल, सो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, देन द लाइंस विल बी C. Intersecting. intersecting sir. or coincident. Very good. What about the next one? D. Sir, no solution. I got no solution. D, no solution. The pair of Yes, equation sir. y equals to 0 and y equals to, just a second, actually my pen is malfunctioning a little bit. So क्या हो रहा है इस पेन को, क्या करना है इसके साथ? So ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? Intersection of coordinate. So y equals to, हाँ, y equals to -7. So it is no solution. Very good. What about the next one? B. The pair x is equals to a and y equals to b represents a line intersecting at a comma b comma a. कैसे इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा? x कोऑर्डिनेट तो a है ना. अगर आपकी लाइन ये है, जस्ट अ सेकेंड, आपकी x ये a है, ठीक है, x इज इक्वल्स टू a है और ये y इक्वल्स टू ये b है, तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है? a पे, a कॉमा b पे तो इंटरसेक्ट करेगा ना. सो इट वुड बी a कॉमा b, क्योंकि x एक्सिस a है ना. क्लियर है? Sir, that's what I हाँ said, वो, sir. B. ओके डी से कहा, जैसे मुझे लगा आई हर्ड बी. कोई बात नहीं, दैट्स फिर करेक्ट है आपका, ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट लाइन. तो कोइंसिडेंट लाइन है तो इट मींस दैट ऑल द रेशियोज शुड बी इक्वल. सो Yes. 3/6 is equals to -1 by minus of k is equals to that is 8 by basically 16. So आप किसी को भी इक्वेट कर दो यहाँ पे. So अगर आपने इसको इक्वेट कर दिया, so 3, so it is nothing but 1/2, just a second. So 1/2 is equals to 1 by k. So k is coming out to be 2. So value is 2. Correct है ये आंसर आपका? Yes, sir. Very good. Just give me a moment. Let me take some more questions. So these are the exemplar questions, and these are this is a very high chance that these questions can be there directly straightforward from your from this book. It basically combines all the concepts that is present in the chapter. Okay, so that's what. क्योंकि अब सीबीएसई भी डायरेक्टली एमसीक्यूज जो पूछता है ना, सीबीएसई क्वेश्चंस, वो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं, तो इसलिए एग्जाम्पलर इज अ बेस्ट बुक. एनसीईआरटी की बुक होती है एग्जाम्पलर ये, ठीक है, तो वेरी हाई चांस आर देयर, ठीक है. सो यू कैन यूज सॉल्व दिस वन.
Done, sir. Okay, what about Karishma? Sir, I'm So, doing the last question. कौन सा? Last question. अच्छा ठीक है. सो इसका 7th का आंसर क्या है आपका? इक्वेशंस लाइन इज पैरेलल, तो आपकी A1 10 by 4 C. B, so not A1 by B1, it's A1 by A2 is equals to B1 by B2 is not equals to C1 by C2. तो आपकी वैल्यू इज 3/2. 3/2 is equals to 2k by 5 is not equals to 2 minus 2/1. ठीक है. तो आप किसी से भी आप इसको एड कर सकते हो. दैट इज 15 and by 4. 15/4 is there. Yes, 15/4 is there. And it is 2 minus of 10 is not there. Yeah. So equate them. 3/2 into 5 divided by 2 again. So it is k. So it is nothing but k is coming out to be 15/4. So this is the answer. यही आंसर है आप लोगों का. Yes, sir. And this line has the infinitely many solutions. So what will be the value? So infinite many solutions है तो c by 6 will be equals to -1 by -2. So minus will 1 cancel this and 2 3s are 6. So c is coming out to be 3. Clear? यही आंसर है आपका. No value. Yes, sir. 3. You got something else, Samina? Yes, I got D. You got D. No dear, many solution, infinitely many solutions होंगे ना, तो आपके सारे रेशियोज इक्वल होंगे. क्लियर है? Yes, sir. हाँ. So one pair of linear equation, pair of dependent linear equation is this basically. The second equation can be. अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? D. Okay, Samina said D. Sir, minus C. Your is C. Okay. So it is -5/x. देखो सिंपल से कुछ नहीं करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको. आपके सारे फ्रैक्शन में सब में 2 दिख रहा है ना. 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? -10x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 4. तो अब देखो कौन सी इक्वेशन में आपकी है. रुको वेट अ सेकेंड. -10x 14y प्लस, या इसको आप इधर लेके शिफ्ट कर लो. सो ये -4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0. तो -4 भी नहीं है. यहाँ पे तो कोई से भी आंसर नहीं आ रहा है यार. रुक जाओ आप. पॉजिटिव. अच्छा ठीक है, रुको रुको रुको. डी होगा आंसर यार, इसका डी होगा. देखो क्यों. -1/2 -1/2 -1/2, तो डी विल बी द आंसर. क्लियर है? बोलो. ऑल इक्वेशन डिपेंडेंट का मतलब है कि ये कोइंसिडेंट होना चाहिए एक दूसरे पे. डिपेंडेंट का मतलब कोइंसिडेंट, यानी कि आपके सारे रेशियोज बराबर होने चाहिए. सारे रेशियोज बराबर कब होंगे? देखो अब देखो, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ. C1 by C2. अब आप देखो, ए आपके पास -5 है. -5 है तो आपको पॉजिटिव नंबर चाहिए होगा. ठीक है. 7 है पॉजिटिव में, तो आपको -14 चाहिए होगा. आपका सी इस वाली इक्वेशन में नेगेटिव है, क्योंकि 2 इधर लेके आ जाओगे तो -2 हो जाएगा. तो आपको क्या चाहिए होगा? 4 शुड बी इन पॉजिटिव. तो पॉजिटिव में होगा 4 कब? जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो आपका ये 4 अगर पॉजिटिव में है तो यहाँ देखो कौन सी इक्वेशन में आपका -10 इज पॉजिटिव. भाई 10 यहाँ पॉजिटिव है, -14 है यहाँ पे है. 4 यहाँ उधर शिफ्ट कर दो, इसको +4 हो जाएगा ये. यस और नो? Yes, yes. ठीक है. सो डी इज योर आंसर, नॉट सी. ठीक है. क्योंकि अगर आपने सी ले लिया ना, देखो सी अगर आप लोगे तो आपका जो सी ये वाला जो केस है, ये -2
और 4, -2 पॉजिटिव नेगेटिव है और 4 इज पॉजिटिव, तो आपका -1/2 रेशियो आएगा लास्ट वाला। तो ये तो मिसमैच करिए ना, ये दो पॉजिटिव आएंगे आपके क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, 14 इज पॉजिटिव, 7 इज पॉजिटिव, ये वाला आपका मिसमैच कर रहा है, तो ये वाला केस नहीं हो सकता ना, ठीक है, Yes, sir. क्लियर। So you have to find the linear equation which has a unique solution of x is equals to 2 and y equals to -3। कुछ भी नहीं, किसी भी इक्वेशन में आप किसी भी इक्वेशन को आप पिक करो, सारी इक्वेशंस में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वही आपका आंसर होगा, या फिर आपको सॉल्व करना होगा, सॉल्व भी कर सकते हो आप। सो विच वन यू विल प्रेफर, इट्स अप टू यू। हिट एंड ट्रायल मेथड कभी कभार आपका जल्दी वर्क कर जाता है इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग, वरना आपको यहाँ पे चार इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। यहाँ देखो पुट करो, x इज इक्वल्स टू 2 + 3, सॉरी -3, ये कितना आ गया -1 आ गया, सेटिस्फाई करिए, यहाँ पुट करो आप, x इज इक्वल्स टू 2, 4 आ गया आपका, और -3 आ गया 9, 4 - 9 -5, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई आपकी। समझ में आया हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे वर्क करता है? Yes, sir. देखो कभी कभार So देखो now, स्मार्ट sir, वर्क जरूरी my होता है। answer is also A. हाँ मेरा भी आंसर A ही है सर। हाँ, देखो अब देखो वो आपकी किस्मत की, दैट्स गुड। अगर आप यहाँ सॉल्व करोगे तो वो आपकी किस्मत की बात है कि आपको पहली बार मतलब ए सॉल्व करो, सॉल्व करने पे आ गया, हो सकता है आपका डी भी हो सकता है ना, कि इंस्टेड ऑफ Yeah, ए I यहाँ got डी रख D. देते वो आंसर। तो इसलिए समीना यू सेड समथिंग, Sir, actually I got D. यू गॉट डी। वैल्यू Yes, sir. सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 -40, ये कितना आ जाएगा आपका, 2 माइनस एंड 3 -12 एंड पॉजिटिव ऑफ 12 आ जाएगा ये। अरे यार ये भी सेटिस्फाई करके ठीक है, देखते हैं इसमें, देखते हैं, 2 5 से 10 एंड -+3। यार इसमें क्या एमसीक्यूज मल्टीपल क्वेश्चन है क्या? रुकना जरा यार, मैं चेक कर लूँ हेडिंग इस उसकी एक्सरसाइज की, मल्टीपल क्वेश्चन है या फिर सिंगल क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है ये, तो ये दो आंसर कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? डी भी आंसर सही आ रहा है यार फिर तो। अरे नहीं 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 नहीं, फिट शिट 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 शिट, मैंने मिस्टेक की, डी है करेक्ट आंसर, डी है। क्यों, देखो क्यों, -3 और -3 कितना होगा, +9 हो जाएगा ना, 5 9 पॉजिटिव का भी और 4, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं किया, आई जस्ट मेड अ मिस्टेक। करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, समीना योर आंसर इज करेक्ट है, मेरा गलत है आंसर। ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a x is equals to a और y equals to b is the solution of this equation, then what are the values of a and b? कुछ नहीं, x की जगह a रख दो, y की जगह b रख दो, a minus b is equals to 2, a plus b is equals to 2 और 4, ऐड करो कितना आ जाएगा, 2a is equals to 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, yes or no? तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, so 3 और 1 is the answer, यही आंसर है आपका। Yes, sir. Very good. So question is, next question is, Aruna has ₹1 and 2 rupees and has only 1 rupee and 2 rupees with her. If the total number of coin that she has is 50 and the amount of money with her is 75, the number of 1 rupees and 2 rupees are basically this. So आप ये इसको x assume कर लो, इसको y assume कर लो, और जो उसके पास टोटल नंबर है, just a second, question is saying Aruna has the number of rupees this. So अगर आप इसको assume कर ले तो देखो total value is coming out to be the total number of coins that she has is, देखो x plus y तो आपका 50 हो गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स सारे मिलाकर, एंड द अमाउंट ऑफ मनी शी हैज, यानी कि देखो x plus 2y, यानी कि 2 रुपए का कॉइन है, इज इक्वल्स टू 75। x को सब्ट्रैक्ट करो, व्हाट यू विल गेट, y विल बी इक्वल्स टू 25। y 25 है तो x भी कितना होगा, 25 ही होगा नंबर ऑफ कॉइन्स में, यस और नो? ये आंसर आया आपका डी। Yes, sir. वेरी गुड, लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, देन उसके बाद एक अगर टाइम मिलेगा तो सब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन करो,
ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को उन्होंने इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव पूछा है, सो कैन बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। Sir, 13th one is C. Okay, so 13th one is C. Okay, so फादर की एज सपोज कर लेते हैं x, ठीक है। फादर्स एज इज x, सो जस्ट अज्यूम दिस थिंग, द फादर एज इज x और जो सन्स की एज है दैट इज y, ठीक है। सो इक्वेशन है कि फादर की जो एज है 6 टाइम्स मोर देन हिज सन, क्लियर है। So father age is 6 times his age of his son. X is equals to, so x is equals to 6y, और जो 4 after 4 years the age of father will be 4 times of his son. So x plus 4 is equals to y plus 4 कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। Substitute this value, 6y plus y is equals to 4y plus 16, 7y minus 4y, 3y is equals to 16,
नहीं यार, ये क्वेश्चन तो नहीं बननी चाहिए। 6 times 4 years since the father's age is 6. Why? Just a second. Just a second. So 36, हाँ 36 हो जाएगी आपकी। y plus 4 होगी x plus 4 times 4y, x plus 4y. So it is coming out to be 6. So x is equals to 6y, तो ठीक है, मुझे कुछ प्लस माइनस की मिस्टेक लग रही थी। x is equals to 6y, ठीक है। सो और ये आपका है x plus 4 is equals to 4 of y plus 4, ठीक है। सो x plus 4 is equals to 4y plus 16. तो 16 को x minus 4, x minus y सॉरी, एंड इट इज 12, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपको सब्स्टिट्यूट करो 6 को, x6, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ यार, बताना जरा मुझे। अरे 4y है ना, 6y माइनस 4y इज इक्वल्स टू 12। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 2, ये आपकी आ जाएगी 6 आ जाएगी y की वैल्यू, ठीक है। अगर 6 आ गई है तो 6 टाइम्स है, तो ये कितना आ जाएगा 36। तो ये आंसर इज करेक्ट, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जल्दी से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसमें क्या है, बेसिकली आपकी वैल्यू निकालनी p और q की, जब आपके फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि आपके जो ऑल द पेयर्स हैव आर इक्वल इन, ऑल द रेशियोज आर इक्वल इन नेचर। सो इट इज a1 by a2, b1 by b2। थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर रह जाएगा ना क्लास में भी, तो यू कैन प्रोसीड एट योर होम बाय योरसेल्फ। सो 4 by 2p प्लस के 7q is equals to 5 by p plus 8q is equals to 2 by 2q minus p plus 1। देखो आपकी दो इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे 4 और 5 को, इन दोनों को इक्वेट कर दो। सो 4p plus 8q is equals to 5 2p plus 7q, ठीक है। अब इसको आपने इससे इक्वेट कर दिया, अब इसको इससे इक्वेट कर दो। 5 2q minus p plus 1 is equals to 2p plus 8q, ठीक है। सो अब वैल्यूज निकाल ले सकते हो आप। 4p प्लस के 32q इज इक्वल्स टू 10p प्लस के 15q, सॉरी 35q, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ गई 10p एंड 30q। 10p आपके 10p माइनस 4p 6p आपकी वैल्यू बचेगी, एंड 35 माइनस 32 विल बी 3q विल बी इक्वल्स टू 0। तो आपकी वैल्यू आ गई, 3 कॉमन ले लो यहाँ से, तो 2p इज इक्वल्स टू q, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से आप एक और इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, 10q माइनस 5p प्लस के 5 इज इक्वल्स टू 2p प्लस के 16q, ठीक है। 10 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 6q बचेगा, 10q 16 माइनस 10, और इसको अब 5 को उधर शिफ्ट कर दो तो प्लस के 7p बचेगा, 7p आएगा इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब वो p इंस्टेड ऑफ q यू कैन राइट 2p, सो वैल्यू 6 इंटू 2p प्लस के 7p इज इक्वल्स टू 5। तो कितना आ जाएगा ये, 6 2 12 एंड 7 19 is equals to 5. So p's value is coming out to be 5 by 19. Clear है? Got it? Yes. Just a second. हम्म 5 की वैल्यू पुट करना, रुको। हाँ, you can instead of this equate this and this. So 2q minus p
plus 1 is equals to 4 2p plus 7q. देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स बचेगा क्योंकि सेम साइड है. अगर आप उसको इधर शिफ्ट भी करोगे तो डिवीजन में जाएगा, सो इट विल गिव यू 2. सो बेसिकली 2p plus 7q is equals to twice of 2q minus p plus 1. इक्वेशन फॉर्म कर देता हूँ मैं बेसिकली. सो ये आपका आ जाएगा 2p plus 7q is equals to 4q minus 2p plus k2. शिफ्ट कर दो सारी इक्वेशंस को एक साइड. 4p minus 3q is equals to 2. Put the value of q instead of value of q as p. So 4p minus 3 into 2p is equals to 6. Oh sorry 2. So कितना आ जाएगा ये आपका 4p minus 6p is equals to 2. So p is coming out to be -1. Actually satisfy नहीं कर रहा था तो इसलिए मैंने इसको इक्वेट किया. ठीक है. So ये आपकी वैल्यू कितनी आएगी? -1. क्लियर है? अब p की वैल्यू आ गई तो 2 into -1 is equals to q. तो q की वैल्यू कितनी आ गई? -. Got it -2. everybody? Yes, sir. Any doubt? No, ठीक sir. है. So these are the questions that can be there. Got it? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Okay. Okay. So everybody, that's all for this class. Okay. So, okay, Karishma and Samina, you can leave the class now. Okay. Thank you so Thank much you. for joining me.